So format of P&L account, we will see the format of P&L account in this uh, lecture. So schedule and rupees. So सबसे पहले what comes here is operating profit or loss from which business this is related to marine business. जो ऊपर you have got, ऊपर जो balancing figure you have got from here, you will start with that because this revenue account is prepared for business and P&L account is prepared for the company, and in the company there may be more than one business. Matlab it may, they may have marine also, fire also, miscellaneous also, but when we are preparing revenue account we have to prepare business के अकॉर्डिंग. मराइन के होगा तो उसके लिए एक रेवेन्यू अकाउंट, दिस फायर होगा तो दूसरा. अमाउंट में कॉलम्स बनाएंगे एंड एक साथ प्रिपेयर करेंगे. वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे एक से ज्यादा बिजनेस है तो कैसे करना है. दैट ऑल्सो वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Then see here, what is the amount we have got there? 21 lakhs. What amount we have got there? 21 lakhs. तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है income from investment. Income from investment. What is this income? This income is profit, loss. This income from investment is what? This is इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ये जो भी है ना, दिस इज ऑल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी हमने रेवेन्यू अकाउंट में दिखा दिया है, तो यहाँ पे दोबारा दिखाने का ज़रूरत नहीं है. अगर वहाँ पे नहीं दिखाते तो यहाँ दिखाना पड़ता. गेटिंग माई पॉइंट, वी कैन नॉट शो दिस इनकम बोथ द प्लेसेस, इधर एनी वन प्लेस. वहां दिखा दिया तो यहाँ नहीं दिखा सकते, यहाँ दिखा रहे तो वहां नहीं दिखाएंगे. गेटिंग माई पॉइंट. सो हियर हम, और फिर इधर अदर इनकम, सारे इनकम्स तो हमने वहीं पे दिखा दी इन द रेवेन्यू अकाउंट. सो यहाँ पे कुछ भी दिखाएंगे नहीं हम. अगर कभी कभी व्हेन मोर देन वन बिजनेस इज देयर, तब हम वहाँ नहीं दिखा पाते तो हम यहाँ दिखाते हैं. तो दोनों में से कोई भी एक जगह में दिखाओगे तो इट इज करेक्ट, उधर दिखाओगे तो भी करेक्ट. और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूछा है तो आपने यहाँ पे इनकम को दिखाया कि कौन सा इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, असेट, एनी इनकम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं क्योंकि सेम कॉलम्स आर देयर, पर दोनों जगह नहीं दिखा सकते. देन इट विल बी अ मिस्टेक. दोनों जगह पे दिखाएंगे तो. नाउ जब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट टोटल ऑफ ए, दैट इज टोटल इनकम 21 lakhs. इसके बाद what we will do, we will write next one, provisions bracket में other than taxation. So is there any provision other than taxation in the question? जैसे diminution in the value of investment, is there any diminution in the value of investment? Is there any diminution in the value of investment? Diminution means reduction in the value of investment. देखो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्वेश्चन में दो चीज दिया है कंपैरिजन के लिए. एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 से 105 हुआ एंड वी हैव इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो 20 से 18 हुआ. डिमिनिशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ asset, investment, reduction in the value of investment. So share 20 से 18 हुआ. How much diminution is there? Investment in, I can write investment in shares, which was how much? It was how much? 20. Say it became how much? 18. Na, correct? It has become 18. 1 minute.
How much it has become? It has become 18. So we can write here 20 से 18 हो गया. So we will write 18. So कितने का diminution हो गया? It is 2. 2 का diminution. And then anything else is there? Anything else is there? इससे less करना पड़ेगा. Increment in the value of government investment in government securities. Diminution भी है, increment भी है. So how much is the increment? Let us see. 100 lakhs it was earlier. Now the government, see, government investment in government securities was 100. Now it has become how much? Government security have become 31st March 2014 को government security has become 105. तो यहाँ पे we can write, यहाँ पे we will write 100 से ये कितना हो गया? 105. सो दियर ये एक्सपेंसेस का साइड है, तो इसमें इनकम दिखाएंगे तो हमें ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा 5 lakhs बिकॉज इट्स अ साइड ऑफ एक्सपेंसेस. देन एनी अदर एक्सपेंस लिखना है तो अदर एक्सपेंसेस कुछ है जो प्रोवाइड करना है. एनी अदर प्रोविजन, अदर प्रोविजंस if any, nothing. सो अब इसका हम टोटल निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका निकालने से पहले टोटल, सी, वन मोर थिंग इज देयर दैट वी हैव टू पे अटेंशन. दैट इज हमें और कोई एक्सपेंस दिया है क्या? देखो, इज देयर एनी अदर एक्सपेंस गिवन? अदर्स, अदर प्रोविजन, इसको इफ एनी या तो बोल सकते टू बी specified, to be specified, not given ना, to be specified, not given. So इसके बाद what we will do, इसके बाद we will go to fifth one, that is other expenses. अदर एक्सपेंसेस में हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, विच आर नॉट रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस. यहाँ पे क्या दिखाते? एक्सपेंसेस दैट आर नॉट रिलेटेड टू इंश्योरेंस business. Expenses that are not related to insurance business. ऐसा तो कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया है क्वेश्चन में नॉट रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस करके. नथिंग इज देयर. सो इसके बाद एक और चीज हम यहाँ पे दिखाते हैं, दैट इज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. हम क्या दिखाते हैं? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ दिखाते इन द फॉर्मेट. एंड उसके अलावा अदर्स, इसको बोलते टू बी स्पेसिफाइड. नाउ लेट अस चेक इन द क्वेश्चन इफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इज गिवन. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है क्या क्वेश्चन में? लेट अस चेक. इस बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? बैड डेट्स, yes it is there. So we will write here it is 10. So इसके बाद we will take the total. We will take the total. How much is it coming? Total of expenses. इसको मैंने दे दिया heading B. तो इस कितना हो गया ये? 12 minus 15 becomes how much? 12 minus 15, 7 ना. 12 minus 5, 12 minus 5, ये 10 प्लस ये 2 दोनों एक्सपेंस और ये इनकम है, तो माइनस कर दिया तो इट इज बिकमिंग टू 7. करेक्ट. सो इसके बाद व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट वन
what we get is profit बिफोर टैक्स. पीएनएल अकाउंट में क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी. ए माइनस बी. So A is 21, B is 7. How much it comes to? 21 minus 7. How much will it come to? 14. Correct? तो इसमें से हमें क्या करना है? लेस करना है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. प्रोविजन फॉर इनकम tax is how much percent? Given in the question 65%. 65% of how much? प्रॉफिट कितना है? 14 का 65% निकालो. 14 का 65%, it is 65% है given in the question. Provide tax 65%. So 65% tax provide करना है. Provided 65%. How much are you getting? Give me the answer, please. Give me the answer. 14 का 65%. How much you are getting? I am waiting for your answer. Yes, 9.1. So जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? Profit after tax. Profit after tax minus करके बताओ how much it is coming to? How much is it coming to? 4.9. So इसमें हम एक और चीज हमें ऐड करना पड़ेगा. ये आने के बाद हमें ऐड करना पड़ेगा ऐड लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बॉट forward. It may be profit also, it may be loss also, but we can see that it is a profit. So we will go above and see last year का profit कितना bought forward करना है. How much is the last year profit bought forward? 10 lakhs. So हम यहाँ जाएंगे. We will write here what is the last year's profit? It is 10. So इसको add करने के बाद finally जो मिलेगा will be balance carried forward to balance sheet. Carried forward to balance sheet. How much is it coming? It is coming to 14.9. It is coming to 14.9. With this, the sum is done.